talk is about comparative economic systems, where we are going to look at the different features of the major economic thoughts or systems that we have in our economic history. So we would start with what are the features of capitalism, and then what are the features of Marxism or communism, and then I am also going to talk a little bit about Islamic economic system. Now, because I am going to introduce these economic systems in a comparative way, I would be highlighting the points of differences rather than the points of commonality, so that you are able to better understand that what is the contrast between these economic systems, what are the different, you can say, thoughts in these economic systems concerning different issues of economics and different topics of economics, both with respect to the theory of economics as well as how it is applied to solve economic problems in the society. So because nowadays we only have, you can say, uh, capitalism as the major economic system, at least in practice, because you know that in Marxism we had different features due to which it was applied in some places, but then later on, especially in the 1990s, when USSR was divided into different states, practically speaking, Marxism ended from the real one. Still, Marxist ideas influence policy, and it has also provided some feedback and some chances of improvement in the capitalism system. But more or less, what we see nowadays in different economies in different countries is a mixed economic system, where most of the, you can say, postulates or features are coming from capitalism, with some of the, you can say, corrective measures influenced by Marxist ideas. So we have a mixed economic system kind of a scenario in most of the countries. Some countries would have more tilt towards the capitalism features, some countries would have more tilt towards the Marxist system, but in a continuum of capitalism and Marxism, we can say that most of the countries are now leaning towards the capitalist system. So I also name this kind of economic structure, this kind of economic system, as mainstream economics, which is kind of a, you can say, combination of capitalism and Marxism, but where most of the, you can say, features of capitalism are at the, you can say, forefront. So this is going to be the outline of my talk. I will first of all give the contrast of Islamic economics with mainstream economics. What are the different issues or problems with mainstream economics from the Islamic point of view? And then we are also going to look at the same thing from the Marxist point of view. And then we are going to discuss the Islamic approach to economics and society. Now, first of all, when we talk about mainstream economics, one point of contrast or one point of difference that comes when you evaluate it from an Islamic point of view is that it has negative premises as foundation. Negative premises as foundation. Now, I would like to give you some examples of what I mean by that. In economics, you would have discussed in the very first lecture that resources are scarce for needs as well as wants. So economics does not distinguish between needs and wants. It says that resources are scarce and the wants are unlimited. And the wants include the needs as well as those things which are not quite in the domain of essentials, but they are also considered as part of the want, you can say, circle, or the want box. So economics starts with this fundamental axiom that resources are scarce and wants are unlimited, and this is regarded as a fact. But when we look at the real world, especially when we look at some statistics, we tend to find that, first of all, when we talk about wants, not all wants are urgent. Not all wants come in the domain of essentials. There are some wants which come in the, you can say, domain of needs, and there are some wants which come in the domain of comforts or luxuries. Economics, the mainstream economics, does not distinguish. When you read your economics textbooks, it does not make a difference between that some wants are need based and some wants are not need based. They are in the domain of comforts or luxuries. So economics does not make that distinction. Now what happens is that when you do not make that distinction, you tend to feel that, well, in comparison to all the wants, we have scarce resources.
But if we make a distinction between need and want, what we find is that for basic needs of a human being and of a human society, even if we take into account 7 billion human beings, we have more food per capita now than in any time in history. In fact, in 1970s, the food per capita was a particular level, and it has been rising ever since now after 50 years. So each year we have more food per capita availability since 1970s as compared to the past. So even though human population has been increasing, but even if we adjust for that, and if we look at food per capita, the food per capita availability has rising, which means that one of the essential needs of human being, which is to have food security, which is to have food for their nutrition and for their survival, this resource is not scarce. This resource is abundant, and it has been rising ever since, even if we look at the per capita figures. Now this is something that challenges the axiom or the premise of economics. And when we look at this fact that if we have, let's say, 600 million poor people in the world, if we give them dollar a day every day, so daily 600 million dollar is needed to feed every poor person on average, on you can say on a broad level, we can say this as a fact. Yet about 2.75 billion dollar value of food is wasted every day, which means that the problem is not with availability of resources, but with the utilization of resources, with the distribution of resources, with the efficient utilization of the resources. The problem is not with access and availability. The problem is with distribution. Now, when you look at this fact and when you look at from this perspective, the whole scenario changes. Then you are not looking at resources being scarce, you are looking at that they are there, but we have to distribute them effectively. Now, if you believe that resources are scarce, the kind of mindset that would generate in our minds is that of accumulation, is that of not sharing with others, because we have scarce resources. If we have scarce resources and they cannot fulfill all of our wants, why should we care about poverty? Why should we care about giving? Why should we care about charity? Because we have scarce resources. So the first and foremost thing we should do is to fulfill our unlimited wants. And even if we utilize all our resources, we would still have unsatiated wants. Now, this is the kind of picture that you get from economics if you believe that resources are scarce as compared to all sorts of wants. But if you make a distinction between needs and wants, and then when you evaluate the resources availability with respect to need, you will find that there is more food per capita availability ever since 1970s, and there is no problem with food. When we talk about shelter, you know that a lot of land in the world is unpopulated, so that is also not a problem. We have countries like Australia, Russia, and other parts of the world where we do not have this problem of lack of shelter. So even 7 billion human beings are not populating the entire world. The shelter is also not a problem. So this is one of the, you can say, negative premises foundation in mainstream economics, which creates a problem in the way how we tackle the economic issues or economic problems. The second negative premise is that people pursue selfish self-interest in economic models. So consumers maximize utility, producers try to maximize profits. Now, when we have this kind of a economic objective, what happens is that we look inwards, we look selfishly at our economic situation. We do not look to care about others. We do not look to be responsible towards the society and the members of the society. We do not look like that, because we think that because resources are scarce, we have to maximize our self-interest, because that is the best we can do. Even by utilizing all of our resources on our wants, we would still have unsatiated wants. So why care about others? Why care about society? Why care about other living beings? And that is what has happened. The challenge to biodiversity after the industrial revolution has been very significant, and now about more than half of the animal species have been made extinct by human beings due to their overconsumption, due to their economic activities, and so on. So that is a primary result of these negative premises as foundation, that human beings have to pursue selfish self-interest in economic models. And that is what we preach in our economic modeling. We say that consumers only look to maximize their own utility by utilizing their own resources on their
on their self, not looking to share these resources with others. We know that in mainstream economics, one of the axiom that we take into account when we are discussing consumer behavior is the concept of monotonicity, which means that more is better than less. If more is better than less, then you should always be looking to have more consumption on yourself rather than trying to share it, rather than being willing to share the resource with others, share the resource with pro-social causes, and so on. And because economics tacitly assumes that people only pursue selfish self-interest even when they are doing business, even when they are consuming, altruism would be considered as uh, e- as either nonsense or as an impure activity. So many economists have thought that altruism does not make sense in economic behavior, because if people pursue selfish interest, then altruism should be a nonsense. Why you should waste your resources by giving them to others when you already have unsatiated wants? So some economists looking at this real world behavior, that people do engage in charity, people do engage in volunteering, people do donate blood and so on. So how do we describe that? So when economists in the mainstream tradition looks at these things, it says that altruism is basically also a selfish activity. We do it because we get a warm feeling from it. We satisfy our ego that we are on the giving side rather than on the receiving side. We do it because we want to improve our social image. We want to look better to others. We want to have a better social image as a politician, as a business person, as a corporate entity. We do corporate social responsibility so that our products sell and we have a good brand image and customer loyalty. We do it to increase our fame. So when we do charity, it gives us the positive image in the society. It gives us name and fame, and that helps us in our profession. That helps us selling goods, and we do it also as a way of social insurance. Social insurance meaning that if you give resources to others, you would then be saving yourself from the negative outcomes. Like if people are poor and if you do not share resources, they might engage in behavior like uh, stealing things or looting other people. So for your own social safety, for your own social insurance, you pay to charity so that people do not become quite um, hardened to the extent that they engage in criminal activities or hurting your self-interest. So these are some of the explanations in mainstream economics about the charitable behavior. But we know that this is not quite describing the reality. People pay anonymously to charity, where they are not getting any disclosure of what they have contributed, how much they have contributed. People even help those who are living very much far from them. So we pay to charity for people of Gaza, for people of other countries where some calamities occur. We do not meet those people. We do not live in those countries. We do not have any relationship or neighbor relationship with those countries. But still, we contribute to people who are not related to us, and we still do that, and we do that anonymously. Now this cannot be explained through neoclassical economics, which says that people only engage in the pursuit of self-interest. Some other negative premises are that individualist economic agent is assumed to make economic decision and the contribution of family is ignored. So it is the individual who is spending his or her income on some goods and services. So the concept of family does not come in economic literature, in economic textbook. Whereas we know that a human being for a very considerable period of time is dependent on family. And when we grow old, still then we are dependent on our family. So the role of family is very important in the non-working age period of a lifetime. When we are born, we are not able to fulfill our economic needs by our own economic resources. We are not able to engage in enterprise, engage in labor after about even 25 years. So since our birth to 25 years of age, we are dependent on our family members, we are dependent on our parents. And after we retire, we
spend our last years of lifetime also as dependent, and we are dependent on other family members. So the role of family is very important in meeting economic needs, but that does not get any sort of a, you can say, mention in economic textbooks. The role of family and social capital is completely overlooked. The representative agent, a single human being, is considered to get young, educated, skillful exogenously, automatically, and depends on insurance and accumulated savings. So we think that only accumulated savings and insurance would help a representative agent, but we ignore that from birth to youth, he or she is dependent on family. And likewise, when she retires or he retires, then also he or she is dependent on family. The role of family is completely ignored. And because economics assume that resources are scarce and wants are unlimited, the tendency is to accumulate wealth for post-retirement life. Because if there is no family assumed in the economic model, if there is no role of family incorporated in economic theorizing and in economic discussions, then we would tend to think that, well, we have to fulfill all of our unsatiated wants by ourselves, and we have to accumulate wealth for post-retirement life. So even if I am having enough income to meet my needs, I will still not pay to charity. I will still not contribute to social, pro-social causes, because I think that in post-retirement life, I will need that money. So why should I part with that money now? So even if I do not have any present use of the resources that I have, I should not be parting with it. I should not be giving it to others. I should be saving it for my post-retirement life. So this brings a very important problem in economy, that resources would remain concentrated and they would not be distributed where they are needed. And then economics is value neutral between ends. If there is a producer who can produce a luxury car and can also provide, let's say, a necessity to society, then he or she would be neutral between ends. He would only look at, well, where my profit is getting maximized. If my profit is getting maximized by producing luxury cars, I would do that, even if, let's say, half or 75% of the population does not have clean water, does not have enough sanitation facilities, does not have enough education. In Pakistan, we have millions of children who are out of school. A very minimal amount of resources are required to provide schooling, but still that does not happen because the producers find better profit making opportunities in producing luxury cars, in producing luxury apartments, and so on. Economics is neutral between going for expensive vacation and feeding the neighbor. So economics would not make a difference between these two choices. You have the budget, you have the resources, and if you look at how we make the budget constraint, we make the budget constraint by looking at the prices of goods which are spent on which are paid for by the consumer for his or her own consumption, not caring for others, not giving any share to the society. This is how we assume a human being behaves. So tacitly, we are basically encouraging selfishness. We are encouraging self-interested behavior. We are not incorporating this fact that people can look beyond themselves, and they do. So basically, economists are telling the wrong story. They are telling a very, you can say, limited story about human behavior. Human behavior definitely looks self-interest, but that is not end of the story. People also engage in pro-social behavior, and that does not mean that only religious people do that. Even non-religious people do that, but still that is not incorporated in economics. So these are some of the negative premises in economics which are problematic. And the other things are that economics, the mainstream economics, overlook the role of extractive financial institutions. It says that when you need resources, when you have liquidity constraint, you can borrow at a price which is interest rate. It is the prevailing rate of interest. Now, when you can only get your liquidity constraint resolved through debt financing, which is interest-based, will happen. You will get lending only if you have collateral. Now, collateral-based lending excludes the poor. Who gets resources or loan or financing from the banks? Those who are big corporations. 75% of the total financing provided by the banking sector goes to big corporations, and less than 5% to agriculture, less than 5% to SMEs. So you know that in our country, agriculture provides
40% employment to the labor force. SMEs provide a significant number of jobs to the labor force, but these are provided with less than 10% of total financing by banks. So collateral based lending excludes poor. And what happens is that you get deposits from a large number of depositors who are having small savings, and these resources flow to the big corporations. So this creates wealth concentration. A lot of wealth from the greater group of population goes to the very small group of corporate elites. This creates wealth concentration. And then debt servicing necessary irrespective of economic conditions. If you get loan from, let's say, a microfinance institution as a poor person, you still have to service that debt, and if you do not, then you will have to pay even more interest. So more the urgency of need, greater the dire circumstances, more will be the cost of loan that you have to provide. Now this does not create opportunity for socio-economic mobility. It traps a poor person into debt. And then we see that a lot of countries where microfinance is there, still we do not have reduction in poverty. Wherever poverty has reduced, it is through economic growth rather than microcredit. If you look at Bangladesh, if you look at Indonesia, if you look at let's say China, economic growth was the reason why poverty got reduced, not the access to microcredit. Debt of fiat money repaid with output and natural resource exports. So in South America and also in Africa, and also you can include some of the Asian countries there as well, they are primary goods producers. So what they do is they get loan from the foreign countries, and the loans are given in fiat money, which does not have any intrinsic value. There is no backing of gold now against any currency of the world. So when we get currency loan, basically we are getting fiat money, which only has the purchasing power in exchange. And when we have to repay the loan with interest, we have to arrange the funds through natural resource exports, which are having intrinsic value. So we export our oil, we export our cotton, we export our wheat, we export our rice to basically get the resources to repay interest on fiat currency debt, which does not have any intrinsic value. Now, this creates a problem. It has been well documented that the aid that comes in developing countries, it is less than the amount of principal repayment and interest that goes out of the developing countries. So poor countries, developing countries, more they pay more in interest plus principal repayment as compared to the aid that they receive. So on a net basis, there is a more outflow of foreign exchange as compared to the inflow. You can take the case of Pakistan as well. Just compare the amount of debt servicing that we have to pay, the resources that we allocate in debt servicing, and then compare the aid. The aid would come out to be a very small part of the total amount of debt servicing that we have to pay. Then in mainstream economics, another problem is that price mechanism is considered to be a supreme value, but fails to capture externalities. Externalities are basically economic costs that are not incorporated in the price, in the exchange. So if I am a producer and if I pollute environment through my production process, this economic cost that I impose on society would not be paid by me, would not be paid by the consumer. It would not become part of the price. It would be paid by the society. So the society would suffer from the externalities. Likewise, if let's say schooling has a social benefit, but the fees that I am getting from providing schooling is very low, then after considering the private fees that I am going to receive from providing schooling, I would consider that even if there is a huge social benefit, I would not get most of that social benefit. I would not engage in providing schooling. So schooling has a huge benefit. But if I'm getting very low fees for providing schooling, I would only look at what I am getting, because I am pursuing my self-interest. I'm not looking at the society. So environmental damage is not captured in price. The positive externalities of providing schooling, healthcare, sanitation, clean drinking water, that would not be considered. That is why you would have lots of districts in Pakistan where 4G service is available, but there is no clean drinking water, because providing clean drinking water is not good business as compared to providing 4G service or 5G service or any other service where there is a profit making opportunity. So what motivates producers is
the profit maximization, is the profit making activity, opportunity, but not whether it is socially beneficial or not. Debt servicing of fiat money in fractional reserve system requires economic growth, which is focal target, even if future is used up, even if the resources which are going to be available in future, they are used up at a more than sustainable rate and at a cheap price. Meaning that we have a lot of resources which are uh, depletable resources which would not have regeneration, like oil, like other resources such as coal. So these are resources which will deplete at a certain point. Now if we consider the future generations, we should be using those resources responsibly and in a sustainable manner. For instance, if the rate of depletion is let's say a given number, and if our rate of use is much higher than that number, then we would be depleting the resource at a fast pace. Now if I am only looking at my self interest, why would I care about future generations? If I'm not caring about the poor people who are there in my neighborhood now, which I am interacting with, why should I think about future generations? यानी अगर मैं अपने हमसायों का ही अभी इस वक्त ख्याल नहीं रखता, उनके बारे में नहीं सोचता, उनके बारे में मैं मुहतात नहीं हूँ, उनके बारे में मैं हसास नहीं हूँ, तो मैं क्यों फ्यूचर जनरेशंस को सोचूंगा कि उनका क्या होगा, क्या ये रिसोर्सेज हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे. आई वुड नॉट थिंक अबाउट दैट. So price mechanism does not incorporate these considerations of externalities, of sustainability, of intergenerational distribution of resources. And as a result, we have loss of biodiversity and forest cover along with contamination of oceans. And that has been happening ever since Industrial Revolution, because this moment now for me is the thing that I have to care about. Not caring about others, not caring about the future. That is what we get from the basic economic premise, which are having negative, you can say, foundations. Overemphasis on market-based production and distribution. When I used to teach economics, I used to ask that for how many people and how much wheat should be produced. Now, wheat is a necessity. You might tend to think that the answer should be for whole of the population. Whole of the population needs food. So if a decision is to be made about for whom wheat should be produced or for whom the food, the essential food should be produced, the answer should be for whole of the population. No, mainstream economics does not say that the food is going to be produced for everyone. The food is going to be produced with resources for those who have the dollar votes, who are willing to pay the market price. Those who are not able to pay the market price, those who are not willing to pay the market price, they would be excluded from the target market of that production. So not everyone has access to food. According to mainstream economics, the producer is not going to be concerned about whether all of the people are going to be fed or not. The producer is going to look at only this thing, that how many people are able to pay the market price, and according to that, the producer is only going to supply to those who are willing to pay the market price of the resource, even if it is a essential good or even if it is a non-essential good, a luxury. What to produce? The mainstream economics would say what maximizes profit, not necessarily what is needed. So if let's say five-star hoteling or seven-star hoteling or resorts, they have a good market, luxury bungalows, luxury apartments, they have a good market, resources would be allocated on such activities. And if let's say 75% of the people do not have clean drinking water, millions of students are not able to go to school, that would not be the concern of economics. And that is what we see. In models, shortage and surplus impossible simultaneously. If you have studied demand and supply, so you know that in demand and supply equilibrium, either there can be a shortage or there would be a surplus. Either demand would be greater than supply, or demand would be less than supply, or there will be equilibrium. It is not possible that simultaneously you have shortage and surplus. This is what economics says, that either we would have equilibrium. If there is disequilibrium, there will be either shortage or surplus. But this is not possible that shortage and surplus would occur simultaneously. You cannot show me on the demand and supply graph that this is possible. Now look at the real world. Don't we have hungry people who do not have work? So
can we not have this situation, and do we not come across this situation that there are unmet needs of people and there are unused resources as well? According to economics, this is not possible, but this is the fact of life for millions and even billions of people. So economics does not capture reality fully. It only looks at a particular viewpoint, and then it encourages selfish pursuit of self-interest, which is quite, you can say, limiting when we try to deal with economic problems. There is a tilted balance towards efficiency over equity. Which is better, efficiency or equity? If we have to make a trade-off, which is more, you can say, uh, uh, important, and to which of the two we should be giving more priority, efficiency over equity. Economics says that Pareto of efficiency, a Pareto efficient outcome is better than any Pareto improvement outcome. Meaning that if we have an efficient outcome, that is better than any outcome where we have inefficiency, even if that outcome has greater, you can say, equity. So in economics, if you would study monopoly in the later classes, you will see that in first degree price discrimination, the efficiency loss is zero. So the outcome is completely efficient, but all of the economic welfare is concentrated with the producer. The consumers do not get anything. Economics would say that this is still an efficient outcome. It does not make a difference whether a particular outcome is more equitable or not. As long as it is efficient, economics would consider it as the best outcome. And when you come across this discussion of government trying to give subsidies, trying to impose taxes so that these taxes can be used to help poor, economics consider taxation or subsidies as creating dead weight loss. आपने एक टर्म पढ़ी होगी ना, डेड वेट लॉस, यानी उसको एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई सब्सिडी दे दी, ये एक इनएफिशिएंसी को ब्रिंग करने वाला अमल है, एक पॉलिसी अप्रोच है जिससे कि इनएफिशिएंसी इंक्रीज होती है और उसके नतीजे में हम कहते हैं कि डेड वेट लॉस हो जाता है, यानी कि कुछ लॉस हो जाता है और वो डेड वेट है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए था। इकोनॉमिक्स ये सजेस्ट करती है, यानी आप टैक्स लगा के अगर गरीबों की मदद कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स ये कहती है कि भाई ये तो आपने सही नहीं किया, यानी दिस वुड क्रिएट प्रॉब्लम इन इनएफिशिएंसी, एंड economics gives more significance to an efficient outcome as compared to an equitable outcome. So this is also one, you can say, limiting thing in mainstream economics. The other limiting things in mainstream economics are that the models that we have are unrealistic, which lead to commonplace understanding. एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, जब उनको नोबेल प्राइज दिया गया, उनको ये पूछा गया कि आप अपने जो नोबेल लॉरिएट जिस प्राइस के जिस काम के लिए आपको ये दिया जा रहा है, उस काम को आप समराइज करें। तो उन्होंने काम किया था कि जब हम लेबर मार्केट में सर्च करते हैं एम्प्लॉयमेंट को, तो हमें फॉरेन एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाती। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। हो सकता है आपने कहीं ए लेवल्स में पढ़ा होगा या आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में पढ़ेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो उन्होंने कहा कि अगर हम उसको डिस्क्राइब करें अपने काम को, तो वो ये है कि जब हम जॉब के लिए सर्च करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमें फॉरेन जॉब मिल जाती। तो जो क्वेश्चनर थे उन्होंने एब्रप्टली ये पूछा कि भाई ये तो हर एक को पता है, यानी दिस इज अ कॉमन प्लेस अंडरस्टैंडिंग। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी कम टू नो फ्रॉम very complex mathematical models is something that is known by non-economists as well, which is something that is known by non-economists as well. There is nothing which is quite technical, which is quite you can say uh, quite complex. Unrealistic assumptions lead to unsurprising conclusions already known by even non-economists. यानी एक चीज महंगी होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। दिस इज समथिंग दैट यू माइट हैव कंसीव्ड इवन इफ यू डिड नॉट नो हाउ टू ड्राइव डिमांड कर्व फ्रॉम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। assumptions are accommodated for the hope of precision, यानी मैथमेटाइजेशन के लिए assumptions रखी जाती है कि भाई इससे हमें प्रिसाइज रिजल्ट मिलेंगे, मगर जो प्रिसाइसनेस है रिजल्ट्स की, उसका आलम यह है कि कोई इकोनॉमिक्स में ऐसी थ्योरी नहीं है जिसके अगेंस्ट में कोई कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस ना हो। रिचर्ड थेलर जो कि 2015 में उनको नोबेल प्राइज मिला, 2015 या 2016 में, तो उन्होंने ये कहा था कि व्हेन इकोनॉमिस्ट से दैट एविडेंस इज मिक्स्ड, यानी एम्पिरिकल एविडेंस जो है वो मिक्स्ड है, तो उसका मतलब यह है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई थ्योरी तो कुछ और कहती है मगर एविडेंस कुछ और कहता है। सो वी हैव लॉट्स ऑफ दीज इम्प्रिसाइज रिजल्ट्स व्हिच आर क्वाइट डिबेटेड अमंग द इकोनॉमिस्ट। जो ग्रेट रिसेशन आया था 2007-9 का, उसको ना सिर्फ ये कि इकोनॉमिक मॉडल्स डिटेक्ट नहीं कर पाए, मगर इसके अलावा ये भी हुआ कि उसको वो
अपने मॉडल से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए, यानी एक तो डिटेक्ट नहीं कर पाए, यानी कि फोरकास्ट नहीं कर पाए, और जब वो आ गया अब भी अगर उनको ये कहा जाए कि आप अपने मॉडल से समझा दें कि ये क्या हुआ है, तो उनके पास अपने मॉडल से उसको समझाने के लिए भी कोई चीज नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने मॉडल्स में ये अज्यूम किया हुआ कि फाइनेंशियल मार्केट्स लाइक ऑल अदर मार्केट्स ऑलवेज क्लियर. So when there is no disequilibrium, there is no problem. So even unemployment is something that is that is perceptual, that is not existing, because economics thinks that if, let's say, there would be um, enough labor supply and less labor demand, there will be disequilibrium and wages would come down and then equilibrium would be stored. There should not be any possibility of unemployment persisting. यानी ये नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो परसिस्ट करे, मौजूद रहे. एक साल में जब हम अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस करें तो वो अगले सालों में भी हम एक्सपीरियंस करें और वो हमारे पास हमेशा मौजूद रहे. ऐसा होना नहीं चाहिए इकोनॉमिक्स के मुताबिक, मगर होता है. तो इकोनॉमिक्स इन चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं कर पाती. Policy talks and debates have abstract theories aside. So when economists basically talk about policy, they give their own views rather than giving views which are coming from the theory. Then they take an ad hoc approach. When you take an ad hoc approach, basically you are undermining all of the theoretical edifice of economics that you have elaborated, that you have studied, that you have developed. Now, very briefly, let me talk about what are the contrasting features of Islamic economics with Marxian economics. In Marxian economics, the focus is on labor value. Marx thought that labor is being exploited by the capitalist. So when we look at how Marxism and Islamic economics and capitalism looks at different economic ideas, first of all, take private property rights. Marxism says that all property should belong to the community. Capitalism says that beyond codified law, and if you abide by the law, then there is no responsibility and accountability for the acquisition, use, and disposal of private property. You can use it the way you like, you can acquire it the way you like, as long as you are basically following the law. Islamic perspective says that yes, you can acquire private property, you can use private property, but you have to look into account the ethical considerations in your economic choices. You have to make a distinction between what is ethical and what is not. Creation of value. About creation of value, Marx thought that only labor creates value in the production process. In the production process, there is no other factor of production which is creating value, according to Marx. But capitalism says that value is determined in exchange based on marginal valuation. यानी जो आप मार्जिनल, अभी आपका टॉपिक भी चल रहा था मार्जिनल यूटिलिटी, इसी तरह से जब आप प्रोडक्शन थ्योरी पे आएंगे आप मार्जिनल प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे. तो कैपिटलिज्म ये कहता है कि वैल्यू इज डिटरमाइंड इन एक्सचेंज. ठीक है, वैल्यू इस बुनियाद पे नहीं होती कि वाटर हमारे लिए बहुत कीमती है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और डायमंड हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा जरूरी चीज नहीं है तो उसकी कीमत बहुत कम होनी चाहिए. वैल्यू इज डिटरमाइंड इन एक्सचेंज and which also depends on the marginal valuation. वाटर चूंकि बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है तो उसकी प्राइस इतनी ज्यादा नहीं होती. डायमंड चूंकि बहुत स्केर्सली अवेलेबल है तो उसकी प्राइस ज्यादा होती है. वैल्यू इज डिटरमाइंड इन एक्सचेंज बेस्ड ऑन मार्जिनल वैल्यूएशन. इस्लामिक इकोनॉमिक्स भी ये कहती है वैल्यू इज डिटरमाइंड इन एक्सचेंज, बट द products involved in the exchange should be those which are ethical, which are allowed, which are not disallowed due to some ethical considerations. कैपिटलिस्ट शेयर इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. मार्क्सिज्म ये कहता है कि जो इन्वेस्टर है, जो कैपिटलिस्ट है, उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन में शेयर नहीं होना चाहिए. कैपिटलिज्म ये कहता है कि नहीं, रिस्क बेस्ड रिवॉर्ड हो सकता है कैपिटलिस्ट के लिए, मगर उसमें एक चीज जो गलत आ जाती है कैपिटलिज्म में, ये कि कैपिटलिज्म ये कहता है कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, चाहे लोन. ये होगा कि अगर आप कैपिटल, इस्लामिक इकोनॉमिक्स में ये कहा जाता है कि अगर आप पैसा दे रहे हैं इक्विटी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करके, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा जो प्रोडक्शन प्रोसेस का आउटकम होगा. यू विल अर्न इफ द प्रोडक्शन प्रोसेस अर्न्स. इफ द प्रोडक्शन प्रोसेस डज नॉट यील्ड प्रॉफिट्स और यील्ड्स लॉस, यू विल हैव टू शेयर द लॉस. यानी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होगी. इस्लामिक इकोनॉमिक्स ये कहती है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होगी. कैपिटलिज्म में यह है कि नहीं, अगर आपके पास पैसा है, आपने किसी को लोन के तौर पे दे दिया, तो आप उसके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं. इससे क्या होगा, जो रिच कैपिटलिस्ट है वो हमेशा रिच ही रहेगा, क्योंकि उसका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड है और उसको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट प्रोडक्शन प्रोसेस से मिल रहा है, चाहे प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो. इस्लामिक इकोनॉमिक्स ये कहती है कि नहीं, हम कैपिटलिस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम कैपिटलिस्ट को अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करेंगे कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लगाए प्रोडक्शन प्रोसेस में, और प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर प्रॉफिट हो तो वो उसमें शेयर करे, लॉस हो तो उसमें शेयर करे.
यानी कैपिटलिस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी भी है, प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी भी है, मगर उसको अनड्यू प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी कि वो अपने कैपिटल को सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड लोन के तौर पे प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाए और उसको फिक्स इंटरेस्ट मिले। तो मार्क्सिज्म में क्या है कि दो एक्सट्रीम हो गई कि उसने इंटरेस्ट को भी मना कर दिया और प्रॉफिट को भी मना कर दिया। कैपिटलिज्म ने कहा कि दोनों सही हैं। तो ये एक दूसरी एक्सट्रीम हो गई कि आप कैपिटलिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो लेंडिंग और इंटरेस्ट करे और उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाए। इस्लामिक इकोनॉमिक्स में यह है कि नहीं, कैपिटलिज्म को अपॉर्चुनिटी जरूर होगी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करने के नतीजे में रिटर्न अर्न करने की, मगर वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बेसिस पे होनी चाहिए और उसको अनड्यू प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी इस तरह से कि उसके लिए ये अलाउ नहीं होगा कि वो अपने सरमाए को, अपने कैपिटल को लैंड करे और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाए। तो इसकी वजह से जो इनकम एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन है, रिवॉर्ड टू एंटरप्रेन्योरल रिस्क है और जो वेज इनइक्वालिटी है, इन सबको इस्लामिक इकोनॉमिक्स ज़्यादा बेहतर तरह से मैनेज कर पाती है एज कम्पेयर टू द मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स विच इज़ द कैपिटलिज्म और द मार्क्सियन सिस्टम। ठीक है, तो ये स्लाइड्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये नदीम साहब आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। लेट मी मूव ऑन और कुछ और भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। मार्क्सियन इकोनॉमिक्स में एक चीज़ ये है कि लेबर जो है वो सारी वैल्यू क्रिएट करता है। ठीक है, यानी अगर प्रोडक्शन प्रोसेस होगा तो उसमें जो भी वैल्यू क्रिएट हुई है वो लेबर की वजह से हुई है। कैपिटलिस्ट का उसमें कोई जो है ताल्लुक नहीं है, उसका कोई जो है कंट्रीब्यूशन नहीं है। और कैपिटलिज्म में अगर प्रॉफिट अर्न किया जाता है कैपिटलिस्ट की जानिब से तो ये लेबर की एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि उसने एक कुर्सी बनाई है, उसने एक इमारत तामीर की है, कैपिटलिस्ट ने कुछ नहीं किया। तो अगर कैपिटलिस्ट अपना प्रॉफिट अर्न करता है, सारा के सारा सरमाए पे जो यानी रिटर्न अर्न किया है वो अगर लेबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि लेबर की एक्सप्लॉयटेशन होती है। ये मार्क्सियन व्यू है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि मार्क्सिज्म ने ये नहीं देखा कि भाई लेबर जो है उसको फिक्स वेज मिलती है, जबकि कैपिटलिस्ट जो प्रॉफिट अर्न करता है वो रिस्क लेने के बाद करता है, यानी उसका जो आउटकम है वो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग रैंडम है, फिक्स नहीं है। अगर आपने एक लेबर को हायर किया 10,000 रुपए पे तो उसको 10,000 रुपए सैलरी मिलेगी हर महीने, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, तो उसका जो आउटकम है वो फिक्स्ड है। ठीक है, जबकि कैपिटलिज्म में जो कैपिटलिस्ट है all right, Nadeem, can you hear me? Yes, sir. I can hear you. All right. Okay, sorry for the disruption, ये अभी यहाँ मेरे यहाँ लाइट चली गई है, so I was disconnected for a while. Are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, Okay. sir.
ओके, तो मैं ये बता रहा था कि देखें, लेबर जो है उसको तो फिक्स सैलरी मिलती है, जो कैपिटलिस्ट है उसको हो सकता है कि प्रॉफिट ज्यादा हो, कम हो, या लॉस भी हो। तो दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू में फर्क है। इसकी मैंने एक मिसाल दी है कि अगर कैपिटलिस्ट को 50% चांस हो कि वो 20,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर सकता है, और 50% ये चांस भी हो कि हो सकता है कि उसका प्रॉफिट जीरो हो, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैपिटलिस्ट के जो कंपनसेशन की है वो क्या निकलेगी? वो 10,000 निकलेगी। यानी स्टैटिस्टिक्स में हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम को मल्टीप्लाई कर देते हैं पॉसिबल वैल्यू ऑफ दैट आउटकम से। यानी अगर 50% चांस है 20,000 रुपीज अर्न करने का, तो 50% को 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 से। और जो 0% चांस है कि कोई भी प्रॉफिट ना हो, 0% को यानी 0.00 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से। तो अगर हम सम करेंगे दोनों आउटकम्स के एक्सपेक्टेड वैल्यू का, तो वो आएगा 10,000। तो दोनों का एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम है, मगर हो सकता है कि कैपिटलिस्ट को लेबर की निस्बत 2 गुना प्रॉफिट भी हो, और ये भी हो सकता है कि उसको कोई प्रॉफिट ना हो और सारा के सारा लेबर का प्रॉफिट हो। तो दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू में फर्क है। मार्क्सिज्म में यानी कार्ल मार्क्स ने इस चीज को इग्नोर किया, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट की उसने उसको इग्नोर किया। उसने प्रॉफिट को लिया एज अ गिवन कि भाई प्रॉफिट तो होता ही है और ज्यादा प्रॉफिट होता है। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि जब मार्क्सिज्म में क्रिटिसिज्म आ रहा था कैपिटलिज्म पे, तो उस वक्त था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यह है कि आपकी सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रही है डेवलप कंट्रीज में, वेस्ट में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में एंड सो ऑन। जो कॉलोनियल पावर्स थी वो प्रोडक्शन कर रही थी, और वो प्रोडक्शन ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क के लोगों के लिए कर रही है, बल्कि वो डेवलप कंट्रीज के लिए भी कर रही है, थर्ड वर्ल्ड के लिए भी कर रही है। तो जाहिर है कि वो जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उनमें प्रॉफिट ही आना था, उसमें लॉस का कोई इम्कान नहीं था। तो मार्क्स ने ये समझा कि ये जो है एक नेचुरल टेंडेंसी है, यानी हमेशा कैपिटलिज्म जो है वो इस तरह होता है कि कैपिटलिज्म में हमेशा जो है वो प्रॉफिट ही होता है कैपिटलिस्ट को, कभी उसको नुकसान नहीं होता। तो उस वक्त जिस वक्त मुझे सोच रहा था, ये बात बिल्कुल ठीक थी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपकी जो बिग कॉर्पोरेशन थी, जैसे आप ईस्ट इंडिया कंपनी को ले लें, वो बहुत सारे मुल्कों के ऊपर जो है ना, वो आप कह सकते हैं कि एक लिहाज से काबिज थी, एक लिहाज से इस पोजीशन में थी कि वो अपनी अथॉरिटी को जो है इन्फोर्स करा सके मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके। और सारी प्रोडक्शन कॉलोनियल पावर से हो रही है, जो कि पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं अपना माल। और जो रॉ मटेरियल है वो चूंकि अपने कॉलोनियलिज्म के थ्रू थर्ड वर्ल्ड पे बहुत ज्यादा असर रसूख रखते थे, तो वो रॉ मटेरियल भी बहुत चीपली इंपोर्ट करके फिर उसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से गुजार के वो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा कमाते थे, और लेबर भी जाहिर है कि उनको अपने मुल्क से भी मिल जाती थी, और जो कॉलोनियल पीरियड में स्लेव ट्रेड थी उसके थ्रू भी उनको बहुत ज्यादा लेबर मिल जाती थी। तो मार्क्स का जो क्रिटिसिज्म था वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में था हिस्ट्री के, कि जहाँ स्लेव ट्रेड बहुत कॉमन है, जहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ लेट्स से वेस्ट में हो रही है, और डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो सिर्फ एक या तो रॉ मटेरियल सप्लायर का किरदार अदा कर रहे हैं, या कंज्यूमर का किरदार अदा कर रहे हैं, या फिर वो अपने लोगों को जो है वो स्लेव ट्रेड के थ्रू जो है वो वेस्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहां पे तो ठीक है कि एक्सप्लॉयटेशन थी, मगर अब आप आज के दौर में आ जाए तो ऐसा नहीं है कि लेबर जो है वो हमेशा जो है एक्सप्लॉइट होता है, और कैपिटलिस्ट जो है वो हमेशा बहुत ज्यादा उसके ऊपर एक अथॉरिटी रखता है या बहुत ज्यादा कमाता है। ठीक है, यानी ये मैंने लिखा है, टेंडेंसी ऑफ लॉसेस एट द हाइट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज रेयर। तो मार्क्स जाहिर है कि जिस जमाने में रहता है वो जमाने के हवाले से ही सोचेगा। तो उसने ये देखा कि भाई कैपिटलिस्ट हमेशा एक्सप्लॉइट करता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट्स आर द नेसेसरी आउटकम ऑफ एवरी प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द कैपिटलिस्ट। आपको पता है मोस्ट स्टार्टअप्स फेल, मोस्ट स्टार्टअप्स फेल, स्पेशली इन टेक्नोलॉजी सेक्टर मोस्ट स्टार्टअप्स फेल। 90% जो है वो नए बिजनेसेस फेल होता है, कोई एक सर्वाइव करता है। ये आपने पढ़ा होगा ना, बड़ा कॉमन है, मार्केटिंग के कोर्स में भी आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ते हैं, और आपको वैसे ही मालूम है अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं या आपने थोड़ा सा इकोनॉमी का एनालिसिस किया है। मोस्ट स्टार्टअप्स फेल। ठीक है, आप अपनी जो हमारे यहाँ ये जो कंपनीज आई जिन्होंने कम्यूट की सर्विस प्रोवाइड की, करीम, उबर, इसके अलावा भी बहुत सी कंपनीज आई, बट करीम एंड उबर सर्वाइव, अदर्स कुड नॉट। ये आपको हर सेक्टर में नजर आएगा। कैपिटलिस्ट compete among themselves। आप अभी परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे, तो परफेक्ट कंपटीशन में ये नहीं है कि भाई एक ही कैपिटलिस्ट है जो सारे लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहा है। when there are many capitalists and they are supplying goods which are नॉन डिफरेंशिएटेड, तो कैपिटलिस्ट के आपस के कंपटीशन में प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाती है। ये भी आप पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन में कि प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट इन परफेक्ट कंपटीशन। वहां पे तो ये होता है कि कैपिटलिस्ट को नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर कोई इजाफी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, उसकी सिर्फ बेयर मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो निकल रही होती है। तो ये भी चीज मार्क्स ने नहीं सोची कि भाई अगर बहुत सारे कैपिटलिस्ट होंगे उनका आपस का कंपटीशन भी तो उनके प्राइस को और उनके प्रॉफिट मार्जिन को कम कर देगा, और ऐसा होता है।
अच्छा, फिर अगर आप देखें मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कि जो पूरी हमारे यहाँ ग्रॉस नेशनल इनकम जनरेट होती है उसका 75% जाता है लेबर को। यानी अगर आप इनकम अप्रोच से जीडीपी को निकालेंगे तो इनकम अप्रोच में जो वेजेस है, सैलरीज है, वो जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है 75% ऑफ टोटल ग्रॉस नेशनल इनकम। तो आपकी ज़्यादातर इनकम तो जो है वो जा रही है लेबर को, ठीक है। इवन इफ यानी उसमें जाहिर है कि पर कैपिटा इनकम कम होगी, कुछ कैपिटलिस्ट की ज़्यादा होगी, बट स्टिल यानी आपकी जो मेजर पोर्शन ऑफ इनकम है वो तो लेबर को जा रही है, ठीक है। अच्छा, फिर जो पर कैपिटा इनकम है वो अगर आप देखें डेवलप कंट्रीज में तो वो तो मुख्तलिफ सालों से बढ़ती हुई ही आ रही है, ठीक है, यानी उसमें कमी नहीं आई। तो उसका मतलब ये है कि लेबर भी जो है वो अर्न कर सकता है, ये कोई बात नहीं है कि लेबर जो है वो हमेशा एक्सप्लॉइट होता है। अच्छा, फिर सोशल रिलेशंस काफ़ी चेंज हो गई हैं। अब आपके पास है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। उसमें क्या है कि भाई जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये इंसेंटिव भी दिया जाए कि आपको जो सैलरी मिल रही है उसके अलावा ये भी मुमकिन है कि आपको हम बोनस में कंपनी के स्टॉक दे दें, और फिर आप कंपनी में अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, उस कंपनी के स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो आपका भी फायदा होगा। हमने आपको एक स्टॉक दिया जो 10 रुपए का है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अपनी जॉब पे तो कंपनी ने भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किए और उसकी वजह से कंपनी के स्टॉक की प्राइस भी 10 रुपए से 20 रुपए हो गई, तो अब आपका भी फायदा है, आपको भी अपनी इन्वेस्टमेंट पे 100% प्रॉफिट मिल गया। अब ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान है उसमें क्या हुआ कि लेबर और कैपिटलिस्ट की जो तकसीम थी वो काफ़ी ब्लर्ड हो गई। यानी एक तरफ आप लेबरर भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं, और दूसरी तरफ आपको एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान मिलता है तो आप उसके जॉइंट ओनर भी हैं। अच्छा, फिर आ गई हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जिसमें ये मुमकिन हुआ कि एक आदमी एक कंपनी में लेबर है और दूसरी कंपनी के स्टॉक में एज शेयर होल्डर वो ऑपरेट कर रहा है। तो ये जो लेबर कैपिटल की रिलेशनशिप है ये जितनी डिस्टिंक्ट और ब्लैक एंड व्हाइट थी मार्क्स के ज़माने में, वो अब आज के ज़माने में नहीं है, ठीक है। तो दीज शेयर होल्डर्स आर वर्कर्स इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस, यानी हम हो सकता है कि काम एक ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट हमने 10 ऑर्गेनाइजेशन में की है जहाँ पे हम शेयर होल्डर्स हैं। अच्छा, फिर ये भी मुमकिन है कि अगर मैं कोई आइडिया जनरेटर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं अपने काम का कॉपीराइट ले सकता हूँ, पेटेंट ले सकता हूँ। तो मैं एक वक्त में यानी लेबरर भी हूँ और फिर उस काम को सेल करने का भी मेरे पास एक एक्सक्लूसिव इख्तियार आ सकता है थ्रू कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। ये वो रिफॉर्म्स है कैपिटलिज्म के जिसकी मैंने बात की कि अब हमारे पास जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ना प्योर कैपिटलिज्म है ना प्योर मार्क्सियन है, वो इन दोनों के एक कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक इकोनॉमिक सिस्टम है। मगर इसमें जो मैंने आखिरी बात लिखी है वो क्या है कि अभी भी हमारे पास इस मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स में कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमारे पास इनकम इनक्वालिटी बहुत हाई है, लैक ऑफ एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, यानी गरीब गरीब से गरीब तर है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज है, वो जितना कमाते नहीं है उससे ज़्यादा उनको इंटरेस्ट देना पड़ जाता है अपने लोन पे, और लोन जो वो ले रहे हैं वो फिएट करेंसी में उनको दिया जाता है जिसके पीछे कोई कमोडिटी की बैकिंग नहीं है, किसी रियल रिसोर्स की बैकिंग नहीं है। मगर उनको ये कहा जाता है कि आप इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है उसको अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करके हमें प्रोवाइड करें। तो इससे क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो फ्लो करते हैं फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज टू द डेवलप कंट्रीज, इनइक्विटी और बढ़ती है, फिर ये रिफ्लेक्ट करता है पॉलिटिकल पावर में भी। तो इसीलिए आप देखते हैं कि आपके यहाँ जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें ज़्यादातर जो एक्सप्लॉइटेड एंटिटी होगी, ठीक है, वो आमतौर पे एक गरीब मुल्क होगा, ठीक है, उसकी कोई पॉलिटिकल से नहीं होगी, उसका कोई जो है वो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट जो है नहीं लिया जाएगा, और उसको ऑप्रेस किया जाएगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ के उनका जो भी एथनिक या रिलीजियस बैकग्राउंड हो। वी सी अ लॉट ऑफ कंट्रीज वेयर वी सी दिस थिंग हैपनिंग। वियतनाम को आप ले लें, जब यूएस ने उस पर अटैक किया तो उनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं थी कि वो क्यों वहां पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है, बट दे वर हैविंग द पावर एंड दे डिड दैट। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स में क्या अप्रोच होगी। इस्लामिक इकोनॉमिक्स में सबसे पहले ये अप्रोच है कि जो नीड्स हैं उनको हमने डायरेक्टली फुलफिल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसको इस्लाम में कहा जाता है मकासद शरियत, यानी इस्लामिक एक लॉ है तो उसका मकसद ये होना चाहिए कि वो इन चीज़ों को डायरेक्टली इंश्योर करे जो लेट्स से ह्यूमन बींग्स की नीड है। और ह्यूमन बींग्स की जो नीड है वो सिर्फ फिजियोलॉजिकल नहीं है, यानी उसका ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी नीड से नहीं है, फिजिकल नीड से नहीं है, सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल से नहीं है, बल्कि जो स्पिरिचुअल नीड्स हैं वो भी हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, फिर इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। फिर इसके अलावा ये कि ह्यूमन बीइंग एक शख्स नहीं है, वो बल्कि एक पूरी एक स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ह्यूमन बीइंग्स को अगर हम एज अ मैनकाइंड लें, एज अ ह्यूमन स्पीशी लें, तो उनकी सस्टेनेबिलिटी भी जो है वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के नज़दीक एक ऐसी चीज़ है कि जिसको पॉलिसी
डिजाइन में एक अहमियत दी जानी चाहिए। तो सस्टेनेबिलिटी भी एक नीड है। इसी तरह से इकोनॉमिक नीड्स भी नीड्स हैं, यानी इंडिविजुअल की भी और मुआशरे की भी एज अ यूनिट। तो इस्लामिक इकोनॉमिक्स में जो सबसे अहम चीज़ आप देखते हैं वो ये कि वो कोई ऐसा नेगेटिव प्रेमिस बना के फिर सारा एनालिसिस नहीं करती, ये सारी पॉलिसी अप्रोचेस नहीं तय करती। सबसे पहले वो ये तय करती है कि भाई व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी है, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी है, सस्टेनेबिलिटी भी है, इकोनॉमी भी है। अब उसको ज़ाहिर है जिस ज़माने में इस्लामिक फ़िक़्ह मुरत्तब की जा रही थी, इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्क्राइब किया जा रहा था, तो उसमें तो ये आज की जो टर्म्स है वो हम नहीं ज़ाहिर है कि देखेंगे। मगर अगर हम उनको ट्रांसलेट करें कि भाई ठीक है, हमें इस्लामिक लिटरेचर में तो मिला हिफ्दुद्दीन एक चीज़ है, स्पिरिचुअल नीड्स जो है वो ह्यूमन बींग्स की एक नीड है। अब वो आज के दौर में जो है वो हमारे लिए किस तरह रेलिवेंट हो सकती है। तो मैंने एक कॉन्ट्रास्ट करके बताया कि आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, अगर उनको आप देखें और आप जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स में गोल्स ऑफ इस्लामिक लॉ है जिनको मकासद शरियत कहा जाता है, अगर उनको देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा एफिनिटी है, क्लोजनेस है, सिमिलैरिटी है, कंपेटेबिलिटी है। फॉर इंस्टेंस फिजियोलॉजिकल नीड्स को अगर हम एम्फोसाइज करते हैं तो हम हंगर को एड्रेस कर सकते हैं, मेल नोरिशमेंट को एड्रेस कर सकते हैं, स्टंटिंग को एड्रेस कर सकते हैं, क्लीनलीनेस को एड्रेस कर सकते हैं, इसी तरह से सैनिटेशन को एड्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से इंटेलेक्चुअल नीड्स को जब हम एड्रेस करते हैं तो हम ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट को एजुकेशन इनोवेशन के थ्रू एड्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से सस्टेनेबिलिटी अगर एक नीड है, उसको हिफ्दुन नस्ल कहा गया अगर इस्लामिक टेक्स्ट में, तो उसकी आज जो ट्रांसलेशन बनेगी, आज जो उसकी रेलिवेंस बनेगी वो ये कि रिसोर्स कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज, इसमें जो भी कंसर्न्स हैं उनको इनके जरिए से एड्रेस किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स में जो एम्फेसिस है वो डायरेक्ट है नीड फुलफिलमेंट पे, और नीड फुलफिलमेंट में इंसान की सिर्फ फिजियोलॉजिकल नीड्स को नहीं मद्देनजर रखा गया, बल्कि इंसान के माशरे की भी सारी ज़रूरतों को मद्देनजर रखा गया, इंसान की अपनी जो नफ्सियाती ज़रूरियात हैं, स्पिरिचुअल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड, उनको भी मद्देनजर रखा गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ये बात कि एम्फेसिस ऑन वैल्यूज एंड मोरालिटी इन डिसीजन, डिस्टिंक्शन बिटवीन नीड एंड वांट। कंज्यूमर को ये कहा गया कि भाई आपको जो रिसोर्सेज हासिल है उसको आप ये ना समझे कि ये सारे सारे आपकी अपनी कंजम्पशन के लिए आपको दिए गए हैं, आप इसमें माशरे का भी एक हिस्सा रखें। इसी तरह से प्रोड्यूसर को कहा गया कि आप अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के गोल को परसू करने में इन अनएथिकल एक्टिविटीज को लाइक होल्डिंग, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, अफेक्टिंग मार्केट प्राइस, हार्म, डिसीट एंड फ्रॉड को अवॉइड करें। फिर उसके बाद दोनों को ये कहा गया कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप अपने मद्देनजर ये रखें कि इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो आपने सोसाइटी के दूसरे लोगों को भी देना है जो हंगरी हैं, जिनको पॉवर्टी का सामना है, जो चैरिटी की नीड रखते हैं। तो आपने इंगेज करना है प्योर अल्ट्रुइज्म, ठीक है, कोऑपरेट इन गुडनेस, give the best and dearest thing in charity and pay what is in excess. So these are some of the teachings that we come across in Islamic economics, where a consumer is not given this अलाउंस कि आप अपने प्राइवेट सेल्फ इंटरेस्ट को अपनी यूटिलिटी की मैक्सिमाइजेशन में, अपने प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन में ही जो है इंगेज रखें, बल्कि उसके साथ साथ आप अपनी इन कंसिडरेशंस को भी मद्देनजर रखें। फिर उसके बाद ये कि इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी एक हिदायत तो वो हैं जो कि इंडिविजुअल्स को दी गई, फिर उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन होती है उनको जो है मॉडिफाई किया गया या उनके रोल को मिनिमाइज किया गया। मिसाल के तौर पे ये कहा गया कि अगर आप कर्ज देंगे तो उस कर्ज के ऊपर आप कोई इंटरेस्ट नहीं अर्न कर सकते। अगर आपके पास मनी है, कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल इसके पास क्या है कि उसके पास कैपिटल होता है तो वो उसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे, कैपिटलिज्म में उसको इजाजत है। वो ये भी कर सकता है कि वो 1 करोड़ रुपए को 10% इंटरेस्ट पे आगे किसी को प्रोवाइड करे और उसके ऊपर उसको हर साल जो है वो 10 लाख रुपए और हर महीने 1 लाख रुपए तकरीबन मिल जाए। तो इस तरह से जो भी करोड़पति है वो तो कभी गरीब नहीं होगा। तो इस्लाम ने ये कहा कि नहीं, किसी कैपिटलिस्ट को हम इस तरह की कोई अनड्यू प्रोटेक्शन नहीं देंगे। Money cannot earn money unless it takes part in real economy through investment in asset और productive enterprise। इसका नतीजा क्या होता है कि इससे फिर गुड्स मार्केट में और आपकी रिसोर्सेज मार्केट्स में एक्टिविटी जनरेट होती है। अगर मैं अपने पैसे को सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड लोन पे प्रोवाइड कर सकता हूँ तो फिर मुझे किसी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई चीज़ बना के बेचने की जरूरत नहीं है, किसी एम्प्लॉय को हायर करके प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरा पैसा जो है वो सिर्फ कर्ज के तौर पे दिया जाएगा और उस पर मुझे एक मुतय्यन मुनाफा इंटरेस्ट की सूरत में मिल जाएगा। इस्लाम कहता है कि नहीं, अगर आपके पास मनी है इसके बावजूद भी आपको प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में हिस्सा लेना है, अगर आपने उस पर कुछ रिटर्न अर्न करना है। और अगर आप कर्जा फराहम करते हैं
मनी लोन की सूरत में, ठीक है, या आप एक चीज को उधार बेचते हैं, तो आपको जो प्राइस मिलेगी उसमें कोई ये रियायत नहीं होगी कि आपने कितने अरसे के लिए कर्ज दिया। इससे क्या होगा कि कर्ज आप देंगे सिर्फ इस जरूरत के तहत कि भाई लोगों की मदद की जाए, और अगर आपने उस पर पैसा कमाना है तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल इकोनॉमी में जाएगी, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, ठीक है। और इसके अलावा इस्लामिक फाइनेंस में इक्विटी बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग की तरफ ज्यादा रुझान है, ज्यादा उसकी आप कहें कि उसको प्रियोरिटी दी जाती है, उसको आइडियल तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इक्विटी फाइनेंसिंग इंक्लूसिव होती है। देखिए, जब मैं आपके पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो आपके ऊपर कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है कि आप मेरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न करें, ठीक है, कोई कैपिटल गारंटी प्रोवाइड करना जरूरी नहीं होता। इसके अलावा ये कि मेरे इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई रिटर्न प्रोवाइड करना भी, फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करना भी जरूरी नहीं होता। तो ये इंक्लूसिव हो गई। डेट बेस्ड फाइनेंसिंग जो है वो इंक्लूसिव नहीं है, वो एक्सक्लूसिव है। यानी कि अगर मैं आपको कर्जा दे रहा हूँ और उस पर ये पाबंदी है कि आप मेरा जो कर्जा है वो इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे, तो अब मैं जाहिर है कि कर्जा सिर्फ उन लोगों को दूंगा जो इंटरेस्ट के साथ वो कर्जा वापस कर सकते हैं। तो मैं कोलैटरल मांगूंगा, वो हर एक के पास नहीं है, तो पुअर लोग वैसे ही एक्सक्लूड हो गए डेट बेस्ड फाइनेंसिंग में। इसी तरह से जब मैं इंटरेस्ट वसूल करूंगा कर्ज के ऊपर, तो फिर जाहिर मैं ये देखूंगा कि कौन ऐसा शख्स है कि जो वो इंटरेस्ट पे कर सकता है। तो भी फिर बहुत सारे लोग जो है वो हो सकता है एक बहुत अच्छा बिजनेस प्रोजेक्ट रखते हो जिसका लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होगा, सोसाइटी को बहुत बेनिफिट होगा, मगर वो कर्जा नहीं हासिल कर सकेंगे अगर डेट बेस्ड फाइनेंसिंग को यूज करें। इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग में क्या है कि वो इंक्लूसिव है, उसमें जो है वो बिजनेस के पोटेंशियल को देखा जाता है, ना कि ये देखा जाता है कि कितना कोलैटरल है और कितनी आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी, यानी एफिशिएंसी और इक्विटी के दरमियान भी एक तवाजुन हो, ना तो सारा जो फोकस है वो सिर्फ एफिशिएंसी पे हो, ना सारा फोकस जो है वो सिर्फ इक्विटी पे हो। इसके लिए पहले तो इखलाकी हिदायत दी गई कि आप वेस्ट को अवॉइड करें, एब्सोल्यूट टर्म्स में अवॉइड करें। यानी एक हदीस में आता है कि अगर आप समंदर के किनारे भी हैं, दरिया के किनारे भी हैं, तो भी आप वजू करने में बेहतियाती ना करें, पानी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करें। यानी एब्सोल्यूट टर्म में आपने रिसोर्स कंजर्वेशन को एडॉप्ट करना है। इसका फायदा क्या है? हो सकता है आज हम देखें कि भाई ये बहुत सारे हमारे पास खेत खलियान है, हम इसमें जो प्रोडक्शन करते हैं उससे हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाती है। तो आपको पता है बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा भी होता है कि उनके पास अगर एक्सेस गल्ला प्रोड्यूस हो जाता है तो वो उसको वेस्ट कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, अपने गल्ले को, अपने अनाज को डिस्पोज कर देते हैं कि मार्केट की प्राइस कम नहीं हो जाए। तो इस्लाम में ये मना किया गया कि एब्सोल्यूट टर्म्स में आपने जो वेस्ट है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। और ये नहीं कि वो वेस्ट जो जिसका मार्केट से ताल्लुक है। मैंने आपको बताया कि 2.75 बिलियन डॉलर ऑफ फूड इज वेस्टेड डेली। अब ये आउट ऑफ मार्केट इनएफिशिएंसी है, मगर ये इकोनॉमिक्स में इनकॉर्पोरेट नहीं होती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो एफिशिएंसी एनालिसिस आप करते हैं वो सिर्फ मार्केट एक्सचेंज में करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स में आप एफिशिएंसी का एनालिसिस कर रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई मार्केट बेस्ड एक्टिविटी का एनालिसिस है, मगर बहुत सारी चीजें आप नॉन मार्केट बेस्ड एक्टिविटीज के थ्रू भी करते हैं। मेरे पास एक रिसोर्स है, अब मैं उसको अगर वेस्ट कर देता हूँ तो ये नॉन मार्केट बेस्ड इनएफिशिएंसी है जो कि इकोनॉमिक्स नहीं एक्नॉलेज करती। रिस्पेक्ट डिग्निटी ऑफ लाइफ, यानी ह्यूमन बीइंग की जो डिग्निटी ऑफ लाइफ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिफ्दुल नफ्स और हिफ्दुल नस्ल के जो असूल है वो इनको एम्फोसाइज करते हैं। फिर इसके अलावा ये कि इस्लाम में ये रीडिस्ट्रीब्यूशन थ्रू मार्केट एंड नॉन मार्केट इंस्टीट्यूशन। एक तो आपको फैक्टर पेमेंट्स मिलती है थ्रू मार्केट बेस्ड एक्सचेंज, मगर इसके अलावा भी नॉन मार्केट इंस्टीट्यूशन से भी जो है रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। तो उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो है ज़कात, सदका, वक्फ, फैमिली। इनके थ्रू क्या है, नॉन मार्केट बेस्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ज़कात कौन देता है? एक वो शख्स जो लेट्स से एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ वेल्थ से ज़्यादा सरमाया रखता है, ज़्यादा वेल्थ रखता है, वो किसको देता है? वो उसको देता है जो नहीं रखता, यानी रिच से पुअर की तरफ रिसोर्सेज फ्लो होता है। इसी तरह से वॉलंटरी चैरिटी भी है जिसको हम सदका कहते हैं। इसी तरह से ये भी है वक्फ, कि आपने डेडिकेट कर दिया अपना रिसोर्स किसी फिलैंथ्रोपिक कॉज के लिए। तो रादर देन कि आप एक्यूमुलेशन करें, आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें रिसोर्सेज को जो आपके यूज के लिए नहीं है, उनको आप सोसाइटी के कॉजेज के लिए जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो इस्लाम ये कहता है कि आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में सिर्फ मार्केट पे इंहिसार नहीं करना, बल्कि नॉन मार्केट इंस्टीट्यूशंस पे भी इंहिसार करना। इनका फायदा क्या होता है कि अगर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी कम हो जाती है इकोनॉमी में, यानी रिसेशन आ गया, अब रिसेशन आ गया तो मार्केट एक्टिविटी तो कम हो गई। अब मार्केट के थ्रू जो फैक्टर पेमेंट्स मिलनी थी वो बंद हो गई, यानी लोगों को रोजगार मिल जाता था, वेज मिल जाती थी। अब आपकी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई तो वो नहीं मिलेगा। तो नॉन मार्केट इंस्टीट्यूशंस का किरदार इस वक्त जब रिसेशन हो,
एक डिप्रेशन की सूरत हाल हो, लॉकडाउन की सिचुएशन हो, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इंस्टीट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तरफ तो इस्लामिक इकोनॉमिक्स ने ये किया कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज में जो एक्सप्लॉइटेशन के जरिए हैं कि आप अपने कैपिटल पे फिक्स इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, इसको मना किया। और दूसरी तरफ नॉन मार्केट इंस्टीट्यूशन के थ्रू मजीद सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ और सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल के को फैसिलिटेट किया। अच्छा, फिर उसके बाद हम एक आखिरी स्लाइड देख लेते हैं कि अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी देखें, अभी आपने कोई पहले दूसरे लेक्चर में अपने या तीसरे लेक्चर में आपने एक इकोनॉमी का फ्लो देखा होगा कि किस तरह से गुड्स मार्केट और रिसोर्स मार्केट में जो है वो फ्लो ऑफ मनी होता है, फ्लो ऑफ रिसोर्सेज होता है। अब ये आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी को देखें तो इसमें भी आपके पास हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, आपके पास फर्म्स हैं, आपके पास गुड्स मार्केट है, आपके पास रिसोर्स मार्केट है, और बीच में गवर्नमेंट भी है, ठीक है। अब क्या होता है कि हाउस होल्ड को जो है रिसोर्सेज चाहिए ताकि वो गुड्स मार्केट में चीज़ों को खरीद सकें। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई करते हैं फर्म्स को, जिसके थ्रू उनको वो रिसोर्सेज अचीव होते हैं। इस्लामिक इकोनॉमिक्स में ये फ़र्क आएगा कि हाउस होल्ड ठीक है, लेबर प्रोवाइड करेंगे, उनको वेज मिलेगी, वो लैंड प्रोवाइड करेंगे, उनको रेंट मिलेगा। मगर अगर वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल प्रोवाइड करते हैं तो हाउस होल्ड को इन्वेस्टमेंट कैपिटल प्रोवाइड करना होगा इक्विटी फाइनेंसिंग को यूज़ करके, ठीक है, या फिर उनको इन्वेस्टमेंट करनी होगी किसी प्रोडक्टिव एसेट में, और फिर उस एसेट की प्रोडक्टिविटी के नतीजे में अगर कोई रिटर्न मिलेगा तो वो शेयर कर सकेंगे। यानी कैपिटल पे कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि अगर आपके पास इन्वेस्टेबल रिसोर्स है तो आप उसको या तो किसी प्रोडक्टिव एंटरप्राइज में इक्विटी इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, या आप किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस एसेट के प्रोडक्टिव यूज पे अगर कोई रिटर्न जनरेट होता है तो वो आपको कंपनसेशन के तौर पे मिलेगा। अब इसमें कई दफ़ा इस्लामिक बैंक्स बीच में आ जाते हैं जो कि इंटरमीडिएशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ताकि हाउस होल्ड और फर्म्स के दरमियान इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज को एक्सचेंज करने के लिए जो सर्च कॉस्ट आती है और जो मैचिंग प्रॉब्लम आती है। मैचिंग प्रॉब्लम ये कि भाई मैं हाउस होल्ड हूँ, मेरे को 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, मगर फर्म को 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो ये मिसमैच हो गया कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट का सिनारियो है, मैं जितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ फर्म को उससे ज़्यादा की ज़रूरत है या कम की ज़रूरत है, या मैं जिस अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ हो सकता है फर्म को उससे ज़्यादा अरसे के लिए सरमाया दरकार है। तो ये जो मैचिंग प्रॉब्लम है ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी ज़्यादा बेहतर अंदाज में मैनेज कर लेता है। तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में इस्लामिक बैंक जो है वो बेसिकली इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। तो ये एक फ़र्क आपको इस्लामिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में नज़र आएगा। So if you have any question, you can take the question. Sorry, I have exceeded time. There were things to discuss. एक बीच में डिस्ट्रक्शन भी हो गई, बट आई होप कि आपने इससे कुछ गेन किया होगा। एंड आई विल आल्सो प्लेस दिस प्रेजेंटेशन विद योर टीचर। तो अगर आप उसको बाद में भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी इसमें लिख दिया, जहाँ पे आपको ये सारे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, इस प्रेजेंटेशन को आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आई एम स्टिल अवेलेबल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत लेक्चर था माशाल्लाह से। और मैंने आपको इंटरप्ट इसीलिए नहीं किया कि बिकॉज स्टूडेंट्स जूम पे हैं, तो अगर उनकी कोई अगली मसरूफियत है तो वो जा सकते हैं, बट मैं चाह रहा था कि आपका फ्लो ऐसे ही है, बिकॉज इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत कैप्टिवेटिव था। और इसमें एटलीस्ट मेरे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में, जो ज़्यादातर उनमें से साथ के साथ क्लियर हो गए हैं। एक स्टूडेंट का भी एक क्वेश्चन था इंटरेस्ट पे, और वो भी आपकी प्रेजेंटेशन जैसे आगे चली तो वो भी क्लियर हो गया। बट कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन का कहा है, सो आई गिव देम चांस नाउ वन बाय वन। फर्स्ट अम्मार इरफान, आप क्वेश्चन पूछ लें, देन हम बाकियों को चांस देंगे। Sir, 1 minute. ओके। Sir, I want to ask that you must have heard about the term the fixed deposit, which people used to keep in bank to earn return on investment. So I want to ask that what does Islamic economics say about this concept? देखें, इस्लामिक इकोनॉमिक्स में यह है कि अगर आप कर्ज फराहम करते हैं तो उसके ऊपर कोई इजाफी रकम का मुतालबा नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस्लामिक बैंक क्या करते हैं? इस्लामिक बैंक भी तो टर्म डिपॉजिट अकाउंट ऑफर करते हैं,
वो इस बुनियाद पर ऑफर करते हैं कि जब आप मीज़ान बैंक के पास या बैंक इस्लामी के पास या दुबई इस्लामिक बैंक के पास अपना टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल रहे हैं, जिसमें आपने लेट से 1 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो इस्लामिक बैंक वो जो 1 लाख रुपए आपसे ले रहा है वो कर्ज की बुनियाद पे नहीं लेता, वो ये कहता है कि आपने ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट की, आपने ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट की। अब आपकी इन्वेस्टमेंट को फिर हम आगे यूज करेंगे लीज बेस्ड फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने में, या हम शॉर्ट टर्म एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने में हम उसको यूज करेंगे। तो इस्लामिक बैंक क्या करता है, जो इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट उसके पास आता है वो उसको यूज करता है आगे लीज फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने में, जिसके थ्रू उसको रेंट मिलता है, या फिर वो क्रेडिट सेल में इंगेज करता है अपने आप को और उस सेल में उसको प्रॉफिट मिलता है। यानी कि मिसाल के तौर पे किसी क्लाइंट की एसिड खरीदने की नीड है, उसको कैटरपिलर की कोई इक्विपमेंट खरीदनी है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो वो क्लाइंट आता है इस्लामिक बैंक के पास, स्पॉट मार्केट में उस कैटरपिलर की इक्विपमेंट की लेट से प्राइस है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब इस्लामिक बैंक के पास वो आता है, इस्लामिक बैंक ये कहता है कि ठीक है ये एसेट मैं आपको खरीद के फैसिलिटेट कर सकता हूँ कि आपके लिए ये एसेट खरीदना मुमकिन हो। ये एसेट पहले मैं खरीदूंगा 1 लाख रुपए का और फिर मैं आपको बेच दूंगा 1,20,000 रुपए का, और आपने ये कीमत अदा करनी है 1 साल के बाद। क्लाइंट इस पर एग्री करता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके नतीजे में अगर टाइम पे पेमेंट आ गई तो इस्लामिक बैंक को 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा कि 1 लाख रुपए की एक इक्विपमेंट खरीदी और आगे 1,20,000 की क्लाइंट को बेच दी। अब ये 20,000 रुपए का इस्लामिक बैंक को प्रॉफिट होगा। अगर क्लाइंट की ये नीड होती कि भाई ये मेरे पास 1,20,000 रुपए फॉरन पे करने की जो है सहूलत नहीं होगी, आप मुझे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करें, तो इस्लामिक बैंक कहता है अच्छा मैं आपको ये कर सकता हूँ कि मैं कैटरपिलर से ये इक्विपमेंट खरीदूं और आप मुझसे फॉरन ना खरीदा, आप मुझसे ये किराए पे ले लें और फिर 5 साल के किराए पे आप मुझसे ये इक्विपमेंट ले लें, आप उसको यूज़ करते रहें। 5 साल तक आप किराया देते रहेंगे और जब 5 साल किराए की मुद्दत खत्म हो जाएगी उसके बाद आप इस एसेट को मुझसे खरीद सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस में लीज बेस्ड फाइनेंसिंग का एक तरीका है। तो इस्लामिक बैंक जो प्रॉफिट अर्न करता है वो या तो किसी एसेट को क्लाइंट को लीज पे प्रोवाइड करके रेंट की सूरत में होता है, या किसी एसेट को क्लाइंट को बेच के उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है वो इस्लामिक बैंक का मुनाफा होता है। तो इस्लामिक बैंक ने प्रॉफिट और रेंटल इनकम कमाई उस इन्वेस्टमेंट कैपिटल को यूज करके जो डिपॉजिटर की तरफ से आया था। अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट आ गया अब ये शेयर हो जाएगा बिटवीन इस्लामिक बैंक शेयर होल्डर एंड डिपॉजिटर्स। तो ये फर्क है इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग। ठीक है सर, तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सर मुझे इसमें ये कंफ्यूजन है कि जैसे मतलब आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, तो पैसे तो उसके हैं, लेकिन एक तरफ अलग इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे हम किसी कंपनी के किसी कंपनी के हम शेयर्स बाय करते हैं, तो उसका पूरा हमें ऑडिट मिलता है, पूरी डिटेल मिलती है। क्या इस्लामिक बैंकिंग में अगर इस तरह पैसे रखाएं तो सिर्फ आपको आपका प्रॉफिट मिल जाता है, या पूरी डिटेल भी मिलती है कि उन पैसों से क्या हुआ है और सब हिसाब किताब? जी, पूरी पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। इस्लामिक बैंकिंग में अभी ये है, मैंने तो खुद काम भी किया मीज़ान बैंक में, जो भी हम एक फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, तो हर फाइनेंसिंग का शरिया ऑडिट होता है। यानी जब तक कि उसको शरिया एडवाइज़र अप्रूव नहीं कर दे वो फाइनेंसिंग नहीं प्रोवाइड की जा सकती। अगर मुझे कोई गाड़ी भी 10 लाख रुपए की खरीदनी है, लेट्स से यूनाइटेड ब्रावो मुझे खरीदनी है, अब इसके लिए मैं इस्लामिक बैंक से जो है वो लीज फाइनेंसिंग लेता हूँ, तो ये ट्रांजैक्शन लेवल पे भी शरिया ऑडिट होता है। इसको जब तक शरिया एडवाइजर अप्रूव नहीं करेगा इस्लामिक बैंक जो है वो लीज फाइनेंसिंग नहीं प्रोवाइड करेगा। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज है उनका शरिया ऑडिट हो रहा है। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट अर्न हो गया उसमें भी फिर ये है कि आपका कितना प्रॉफिट अर्न हुआ, आपका कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। अगर आप इस्लामिक बैंक की रेट शीट देखेंगे ना तो उसमें 2 टर्म्स होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और वेटेज। वो हर महीने जो है वो इस्लामिक बैंक बताता है। ये ज़रूरी होता है कि नोटिस बोर्ड को उसने ये रेट शीट लगाई हो और उसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसमें मेंशन किया हो। ये जब हम शरिया कंप्लाइंस ऑडिट के लिए जाते हैं तो हम ये बाकायदा देखते हैं तो भाई नोटिस बोर्ड पे क्या ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखा हुआ है। अब आप भी ये एक्टिविटी करेंगे, कभी आप नेक्स्ट टाइम किसी इस्लामिक बैंक की ब्रांच में जाएं, आप उनके नोटिस बोर्ड पे वो रेट शीट तलाश करें और उसमें देखें कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्रीड जो है वो लिखा हुआ है इस महीने का, तो आप देखेंगे कि उसमें लिखा होता है कि इस्लामिक बैंक और डिपॉजिटर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 60-40 या 70-30 है या ठीक है। कुछ और रेट है। तो अब उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के मुताबिक जो है वो डिपॉजिटर्स में तकसीम हो जाएगी। यानी आपने 1 करोड़ रुपए के एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग पे 10 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न किए। अब ये डिपॉजिटर्स में और इस्लामिक बैंक में लेट से 60-40 के निस्बत से तकसीम हो जाएगा बेस्ड ऑन द एग्रीड अपॉन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अब ये फिर डिपॉजिटर्स को प्रोरेट होके मिल जाते हैं। इसकी सारी तफसील बैंक के पास मौजूद होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स टू द अकाउंट्स में भी आप देख सकते हैं।
और इसका ठीक है शरिया ऑडिट भी होता है। ठीक, तो ये कंफ्यूजन भी मेरा क्लियर कर दिया आपने। अच्छा, एक और बात है, पूछ लूँ? जी जी तो पूछें। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी इसमें इस्लामिक बैंकिंग में, तो इसमें क्या लॉस का भी चांस है? क्योंकि इस्लाम तो ये कहता है ना कि अगर आप कोई जैसे कमा रहे हो तो बिजनेस का ये उसूल है कि आप लॉस भी बेयर करो और प्रॉफिट भी। तो जी इसमें मीज़ान बैंक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस तरह, तो क्या लॉस भी होता है या सिर्फ प्रॉफिट ही होता है? देखें, लॉस का इम्कान ज़रूर होता है, मगर इस्लामिक बैंक जिस तरह के तमाम बिजनेसेस करते हैं वो अपने रिस्क को मैनेज करता है, यानी रिस्क लेता ज़रूर है मगर उसको फिर मैनेज करता है। अब देखें, इस्लामिक बैंकिंग में भी क्या है कि ज़्यादातर डेट बेस्ड फाइनेंसिंग यूज़ होती है। डेट बेस्ड फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपको मिसाल के तौर पे मैंने मुराबाहा फाइनेंसिंग के थ्रू एक एसेट की परचेज को फैसिलिटेट कर दिया। इस तरह के आपको कैटरपिलर की इक्विपमेंट चाहिए थी, वेंडर से डायरेक्टली आप खरीद नहीं सकते, आपके पास पैसे नहीं है। तो इस्लामिक बैंक ने कहा कि ये वेंडर से मैं खरीदता हूँ और फिर आपको मैं क्रेडिट सेल पे ये बेच दूंगा और उसमें मैं कीमत ज़्यादा चार्ज करूंगा। जाहिर है कि इस्लामिक बैंक का बीच में प्रॉफिट होगा, तभी तो वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का काम करेगा। अब इस्लामिक बैंक क्या करता है कि क्लाइंट से जब मुराबाहा एग्रीमेंट साइन करता है, उसी वक्त एक अंडरटेकिंग ले लेता है कि जब मैंने वेंडर से ये एसेट खरीद लिया तो आप मुझसे सब्सिक्वेंटली इस एसेट को इस कीमत पे खरीदेंगे। इसकी एक अंडरटेकिंग मुझे देता है। अब जाहिर है कि कस्टमर जब ये अंडरटेकिंग दे देता है तो इस्लामिक बैंक का रिस्क कम हो गया, यानी कि एक लिहाज से उसका रिस्क खत्म हो गया, क्योंकि उसको ये एक अंडरटेकिंग मिल गई है जो लीगली बाइंडिंग है कस्टमर की तरफ से, कि अगर 1 लाख रुपए का एसेट वेंडर से इस्लामिक बैंक ने परचेज कर लिया तो कस्टमर 1,20,000 का ये एसेट इस्लामिक बैंक से खरीद लेगा और उसकी पेमेंट 1 साल के बाद करने का पाबंद होगा। ये अंडरटेकिंग क्लाइंट से पहले ले ली जाती है। अब इस्लामिक बैंक का रिस्क क्या रह गया? क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क, कि वो पेमेंट टाइम पे अगर नहीं करता क्लाइंट तो फिर इस्लामिक बैंक को नुकसान होगा। अब ये रिस्क तो कन्वेंशनल बैंक भी लेता है, ये रिस्क तो मौजूद होता है हर फाइनेंस की ट्रांजेक्शन में कि आपको क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क का सामना करना पड़ता है। मगर ये कि क्लाइंट वो एसेट ना खरीदे या उस एसेट की कीमत जब वेंडर से इस्लामिक बैंक ने खरीद लिया तो कम हो गई, तो फिर क्या होगा? तो इस्लामिक बैंक अपने इस रिस्क को मैनेज कर लेता है वो अंडरटेकिंग लेके। अच्छा, इसी तरह से जब आप लीज फाइनेंसिंग में एसेट खरीदते हैं और फिर आगे लीज पे देते हैं क्लाइंट को, तो उससे भी पहले इस्लामिक बैंक ये अंडरटेकिंग ले लेता है कस्टमर से कि भाई आपने 5 साल के लीज पे ये एसेट फिर हमसे खरीदने का वादा किया है, ये अंडरटेकिंग दी है और ये आपका पेमेंट शेड्यूल होगा। तो वो उस पेमेंट शेड्यूल पे भी कस्टमर पहले एग्री कर लेता है, तब इस्लामिक बैंक जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करता है उस एसेट पर, उस एसेट को खरीदता है और फिर आगे लीज पे देता है। तो इस्लामिक बैंक का अगर आप देखें तो बेसिकली सिर्फ क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क रह जाते हैं। अब चूंकि एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग इस्लामिक बैंक प्रोवाइड करता है, यानी कि सिक्योर्ड लोन देता है, यानी उसके पीछे एक एसेट होता है। एक तो ये ना कि मैंने क्रेडिट कार्ड दे दिया, अब उसके पीछे कोई एसेट नहीं है, ठीक है, या मैंने पर्सनल लोन दे दिया, उसके पीछे भी कोई एसेट नहीं है, या रनिंग फाइनेंस दे दिया, उसके पीछे भी कोई एसेट नहीं है। इस्लामिक बैंक ये प्रोडक्ट्स ऑफर ही नहीं करता, ना क्रेडिट कार्ड, ना पर्सनल लोन, ना रनिंग फाइनेंस। तो इस्लामिक बैंकिंग में ये है कि एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग, तो उसमें ये मुमकिन होता है कि अगर क्लाइंट ने डिफॉल्ट भी किया तो आप उस एसेट को लिक्विडेट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि कन्वेंशनल बैंक का नॉन परफॉर्मिंग लोन टू टोटल लोन्स का रेशो 8 to 10% है, जबकि इस्लामिक बैंक का ये सिर्फ 2% या उससे भी कम रहता है, क्योंकि वो एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है सर, तो ये मतलब है कि बहुत कम चांस होता है कि लॉस हो, यानी वो हाँ काम ही नहीं करता है इस्लामिक बैंक जिसमें जी, रिस्क ज़्यादा हो। हाँ, यानी इक्विटी फाइनेंसिंग अगर इस्लामिक बैंक प्रोवाइड करेगा ना उसमें रिस्क ज़्यादा होगा, मगर वो इक्विटी फाइनेंसिंग नहीं प्रोवाइड करता, आमतौर पे बहुत कम उसका रेशो होता है। ठीक है, ये एक तनकीद भी की जाती है कि भाई आप इक्विटी फाइनेंसिंग पे इतना एम्फेसिस तो करते हैं, मैंने भी अभी इस्लामिक इकोनॉमिक्स के डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स में इक्विटी फाइनेंसिंग पे एम्फेसिस को एक फीचर के तौर पे जिक्र किया। मगर आप ये पलट के एक एतराज़ कर सकते हैं या एक सवाल कर सकते हैं कि भाई आप इक्विटी फाइनेंसिंग पे एम्फेसिस तो कह रहे हैं कि होता है, मगर क्या वाकई में होता है? तो अभी की जो प्रैक्टिस है उसमें ये बात है कि इक्विटी फाइनेंसिंग का इतना आप कहें कि टोटल फाइनेंसिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना डेट बेस्ड फाइनेंसिंग है। इसकी वजह ये है कि आमतौर पे जो डिपॉजिटर होता है ना वो रिस्क कवर्स होता है। देखिए, उसको अगर रिस्क लेना होता तो वो कैपिटल मार्केट में जाता, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता, वो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करता। वो बैंक के पास आता ही इसलिए कि उसकी प्राइमरी नीड क्या है? कैपिटल प्रिजर्वेशन, और उसके साथ अगर कोई नॉमिनल रिटर्न भी मिल जाए, इवन इफ के वो इन्फ्लेशन बीटिंग ना हो, मगर उसकी तवज्जो कैपिटल प्रिजर्वेशन पे। तो इस्लामिक बैंक उसके डेलीगेटेड मॉनिटर के तौर पे ये तो इंश्योर करता है कि जो भी रिटर्न अर्न करे वो डिपॉजिटर के लिए वो शरिया कंप्लाइंट हो, मगर वो फिर ये भी अपने मद्देनजर रखता है कि डिपॉजिटर ने पैसा उसको इसलिए दिया है कि उसका कैपिटल भी बहुत ज़्यादा रिस्क पे आगे इन्वेस्ट नहीं किया जाए। तो इस्लामिक बैंक फिर इक्विटी फाइनेंसिंग ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करता, वो डेट बेस्ड फाइनेंसिंग ही प्रोवाइड करता है।
Okay, sir. Thank you so much. Thank you. Farhan Afzal, now you can please ask your question. Yes, sir. So my question is that we cannot force people for altruism to follow or help this society, and people are as selfish as they are because their selfish approach will stay constant, and rich will be more rich and poor will be more poor. So then, should we never expect anything good in our near future? Or देखें, एक चीज है कि ह्यूमन बींग्स कैसे बिहेव करते हैं, और एक चीज ये है कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को कैसे एनालाइज करती है या कैसे एक्सप्लेन करती है। तो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स ने ये कहा कि कंज्यूमर सिर्फ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पे तवज्जो देता है, उसमें कोई ये बात नहीं आई कि भाई वालदेन से उसके सलूक भी कोई चीज़ है, अपने नेबर का ख्याल रखना भी कोई चीज़ है, अपनी सोसाइटी के गरीब लोगों का ख्याल रखना भी कोई चीज़ है, वॉलंटियरिंग भी कोई चीज़ है, चैरिटी में कंट्रीब्यूट करना भी कोई चीज़ है। ये कोई चीज़ नहीं आती यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के फ्रेमवर्क में। आती भी है तो इस सेंस में कि भाई इसका भी मकसद आपको अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना होता है, तो ऐसा हो सकता है कि आप चैरिटी में पे करें, इसलिए कि आपका नाम बने, इसलिए कि आपकी शोहरत हो, इसलिए कि आपकी ईगो सेटिस्फाई हो, इसलिए कि आपको एक वार्म फीलिंग मिले। तो ये नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स या मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स की एक मेथोडोलॉजिकल लिमिटेशन है। ह्यूमन बींग्स इस तरह से ऑपरेट नहीं करते हैं। ह्यूमन बींग्स तो जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। आप ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग वोट देने के लिए निकलते हैं, हालांकि उनका एक वोट, अभी अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, यानी अगर 26 करोड़ की पॉपुलेशन है तो उसमें एक शख्स के वोट से कितना फर्क पड़ेगा, मगर इसके बावजूद भी लोग छुट्टी लेके वो एक शहर से दूसरे शहर का सफर करके भी वोट डालने जाते हैं, या वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हैं, वो किसी चीज पे एक स्टांस लेते हैं, उसका उनको नुकसान भी हो सकता है, इसके बावजूद भी वो लेते हैं। ठीक है, अभी जैसा आपने देखा, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है या नहीं है, मगर बहरहाल आप इसको अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी देखें तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ नजर आई कि अभी इम्तियाज सुपरमार्केट की जगह जगह जो है वो तस्वीर आ रही थी कि उन्होंने एक ख़ास मुल्क की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने से अभी इज्तनाब किया। ठीक है, अब जाहिर है कि वो एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं ले रहे, वो एक नॉन इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं, यानी लोग जो है वो सिर्फ अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को ही वाहिद कंसिडरेशन नहीं रखते डिसीजन मेकिंग में, बल्कि वो दूसरी चीज़ों को भी रखते हैं। ये लोग हर तरह के ऐसा ही करते हैं, यानी रिलीजियस हो या नॉन रिलीजियस। इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम यह है कि वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करती, इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करती। इस्लामिक इकोनॉमिक्स में यह है कि वो ना सिर्फ ये कि इस बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करती है, बल्कि वो ये भी मानती है कि जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है वो ट्रांसफॉर्मिंग नेचर रखती है, यानी कि उनको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। यानी एक शख्स अगर मिसाल के तौर पे बखील भी है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जो है कंजूस भी है, वो बहुत ज़्यादा अगर सोसाइटी का ख्याल रखने वाला भी नहीं है, इसके बावजूद भी अगर उसको तालीम दी जाए, उसको अच्छी मोरल टीचिंग दी जाए, उसको उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जाए, तो वो बिहेवियर काबिल इस्लाह है, यानी कि वो शख्स जो है इस तरफ माइल हो सकता है कि वो अगर बुरे काम कर रहा था तो अच्छे काम करे, वो अगर लोगों का ख्याल पहले नहीं रखा करता था तो अब रखे। तो इंसान की जो प्रेफरेंसेस हैं वो ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। रिलीजन इस बात को यानी अपनी टीचिंग्स के थ्रू अचीव करने की कोशिश करता है कि लोगों का बिहेवियर ट्रांसफॉर्म हो, इस तरह के एक्सियम्स देके, इस तरह की टीचिंग्स देके, फिर उस पर अमल करवा के लेट से लोगों से, तो वो फिर लोगों के पास एक ऐसी एग्जाम्पल होती है कि यस दे कैन फॉलो इट। मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स अनफॉर्चुनेटली कल्चरल नॉर्म्स को, वैल्यूज को, इंस्टीट्यूशंस को, ट्रांसफॉर्मिंग नेचर ऑफ प्रेफरेंसेस को, इसको वो इग्नोर करती है। ये नहीं है कि लोग वहाँ के सारे ऐसा ही सोचते हैं, मगर बहरहाल मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स में चूंकि मैथमेटाइजेशन का बहुत ज़्यादा फोकस हो गया, तो उसमें फिर ये कहा गया कि भाई देखें, इनकम एक मेजरेबल वेरिएबल है, तो उसको तो हम अपने एनालिसिस का हिस्सा बना सकते हैं। इसी तरह प्राइसेस मेजरेबल वेरिएबल है, उसको हम अपने एनालिसिस का हिस्सा बना सकते हैं। मगर वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटी, कल्चरल नॉर्म्स, ये चूंकि मैथमेटिक्स में इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, तो इनको अज्यूम अवे कर दिया। अब इनको अज्यूम अवे करने के नतीजे में इकोनॉमिक्स का ये ख्याल था कि भाई शायद इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, हम मार्केट बिहेवियर को एनालाइज कर पाएंगे। मगर अब ये हुआ कि ना सिर्फ ये कि आप ने जो हकीकत है उसको पूरी तरह से इंकॉर्पोरेट नहीं किया, उसको बयान नहीं किया, बल्कि उसको इग्नोर करके जो हम चाह रहे थे कि कम से कम हम फोरकास्ट सही तरह से कर सकेंगे मार्केट इकोनॉमिक बिहेवियर को, उसको भी नहीं कर पाए। फ्रीडमैन ने एक बड़ी अच्छी एक मिसाल दी थी जब इकोनॉमिक्स का ये लिटरेचर डेवलप हो रहा था कि भाई इकोनॉमिक्स की मिसाल ऐसी है कि जैसे आप जो है स्नूकर में जो शॉट्स खेली जाती हैं उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब एक फिजिसिस्ट देखेगा तो वो
उस शॉट को एक्सप्लेन करेगा कि ये एंगल था, ये एक्सेलरेशन थी, ये फ्रिक्शन थी, ये टॉर्क था, वो इस तरह से एक्सप्लेन करेगा। अब जो प्लेयर है हो सकता है कि उसको नहीं मालूम हो कि भाई ये एंगल क्या चीज़ होती है, ये एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ होती है, ये एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है, ये स्पीड क्या चीज़ होती है, फोर्स क्या चीज़ होती है, फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है, उसको नहीं मालूम होगा ये क्या टर्म्स है। मगर बहरहाल वो प्ले कर रहा है और उसको मालूम है कि मैं किस तरह से प्ले कर रहा हूँ। तो फ्रीडमैन ने ये कहा था कि हम भी एज अ इकोनॉमिस्ट वो चीज़ें तो जानते हैं कि जो यानी प्ले कर रही होती है अपना रोल, मगर हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसको इग्नोर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि स्नूकर प्लेयर को ये फर्क नहीं पड़ता कि वो टॉर्क, एक्सेलरेशन, फोर्स, स्पीड, फ्रिक्शन इसको जाने स्नूकर खेलने के लिए। अब उसकी ये जो बात है ये उस वक्त तस्लीम कर ली जाएगी जब इकोनॉमिक फोरकास्टिंग उस लेवल पे हमें प्रिसाइज रिजल्ट दे रही हो जिस लेवल पे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब मसला ये है कि जो फोरकास्टिंग हम कर रहे हैं वो भी हमें वो रिजल्ट नहीं दे रही। यानी एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया, पूरा की पूरा आपका इकोनॉमिक लिटरेचर, पूरा इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो उसको ना सिर्फ ये कि प्रिडिक्ट नहीं कर पाई, और ये हुआ कि बाद में जब एक्सप्लेन भी कर रही है तो वो फिर इकोनॉमिक्स की थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर रही है, वो फिर उस तरह से एक्सप्लेन कर रही है कि जो इकोनॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती। क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरी में तो ये अज्यूम किया गया कि फाइनेंशियल मार्केट्स हमेशा क्लियर हो जाती हैं, कोई डिसइक्विलिब्रियम होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, यानी क्राइसिस होना ही नहीं चाहिए। अगर लेबर मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में है तो अनएम्प्लॉयमेंट होनी ही नहीं चाहिए। अब अगर आप रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो फिर ये फिर एक डिस्टर्बिंग चीज़ होती है कि भाई हम, इसका मतलब ये है कि फैक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं और अपनी थ्योरी को हम एक एज अ डॉगमेटिक अप्रोच जो है वो अभी भी लिए हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स की बड़ी प्रॉब्लम है। Okay, thank you, sir. Hassan Ibrahim, now you can please ask your question. I think there is some issue there. Hassan Ibrahim, can you listen? ओके सर, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन मुझे भेजा, आई गेस कि उनके माइक में कुछ इशू है, सो आई एम आस्किंग ऑन हिज बिहाफ। उनका मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वही पढ़ देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि बेस्ड ऑन टुडेज लेक्चर वी कैन कंक्लूड दैट इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ट फॉर ऑल। सो माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई इस्लामिक कंट्रीज लाइक पाकिस्तान डू नॉट अप्लाई इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम? What do you think? What do you think about it? जी, ये बिल्कुल वैलिड कंसर्न है। इसमें हमारे इस्लामिक इकोनॉमिक्स के एक बहुत नोटेबल इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर ज़ुबैर हसन साहब। हाल ही में वो एनसीएफ मलेशिया से रिटायर हुए, तो उन्होंने भी ये इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस थी एक वक्त में, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर ये बेहतरीन सिस्टम है तो मुसलमान ही इसको सबसे पहले क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते। तो ये बात सही है कि ये जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स के तहत, बेसिकली इस्लामिक इकोनॉमिक्स हमें कोई सिस्टम नहीं देता। यानी ऐसा नहीं है कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट सिस्टम है कि जिसमें एक एक चीज़ अपनी पूरी जुजियात में, अपनी पूरी डिटेल में जो है वो हमें दे दी गई हो। हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए, उन प्रिंसिपल्स को इख्तियार करके हम एक सोसाइटी में एक तरह का सिस्टम बना सकते हैं, एक दूसरे वक्त में एक थोड़ा डिफरेंट तरह का भी सिस्टम बना सकते हैं। यानी इस्लामिक बैंकिंग में भी अगर आप देखें तो एक अप्रोच है कि आप इक्विटी फाइनेंसिंग को ही यूज़ करें, एक अप्रोच ये है कि आप डेट बेस्ड फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग के कॉम्बिनेशन को यूज़ करें। तो आपके पास बाउंड्री कंडीशन इस्लामिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल से आ जाती हैं। उन बाउंड्री कंडीशंस के अंदर रहते हुए आप अपनी सोसाइटी के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल के लिहाज से फिर उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इस्लामिक इकोनॉमिक्स का कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है कि जिसको ही अडॉप्ट किया जाना ज़रूरी है, बल्कि मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ चीज़ें अडॉप्ट की जा सकती है विद इन द बाउंड्री कंडीशन ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स। अब ये बात के क्यों ऐसा नहीं है कि इसको अडॉप्ट नहीं कर लिया जाता। देखिए ऐसा होता है कि लोग जो है वो सिर्फ ये नहीं देख रहे होते हर वक्त कि क्या चीज़ जो है सबसे अहम है। ठीक है, यानी अगर आप ये समझते हैं कि सोसाइटी में गुर्बत को ख़त्म होना ये सबसे अहम चीज़ होनी चाहिए, अगर सोसाइटी में हंगर का ख़त्म होना, भूख का ख़त्म होना ये सबसे अहम चीज़ है जो पहले एड्रेस होनी चाहिए। तो अगर तो आप ऐसा समझते हैं तो फिर आपको इस्लामिक इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स ज़्यादा बेहतर लगेंगे। मगर अगर आप ऐसा नहीं समझते और बहुत सारे लोग अगर ऐसा नहीं समझते या उनको ऐसा समझाया ही नहीं जाता, इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक में पॉवर्टी और हंगर और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो बेसिक प्रॉब्लम्स के तौर पे डिस्कस ही नहीं होती, तो फिर आपकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो ये अप्रोच का फ़र्क है। आमतौर पे क्या होता है कि हमारे यहाँ जो रिसोर्सफुल एलीट होती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, यानी वो चाहे कॉर्पोरेट एलीट हो या पॉलिटिकल एलीट हो, आम तौर पे वो अपने
इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ थ्योरीज को और मुख्तलिफ फ़िलासफ़ीज़ को का सहारा लेते रहते हैं। आप इसकी मिसाल ले लें कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, तो उस वक्त फिजियोक्रेट्स की थ्योरी जो है वो ज़्यादा पॉपुलर थी। फिजियोक्रेट्स ये कहते थे कि भाई आप अपने रिसोर्सेज को जो है अपने ही मुल्क में जमा करके रखें, ठीक है। अब उस वक्त जो है वो इस थ्योरी को निगेट करने की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में जब एक्सपोर्ट करनी है, तो जिनको एक्सपोर्ट करेंगे उनको इस तरफ माइल करना है कि नहीं भैया आप फ्री ट्रेड की तरफ आए, आप अपने रिसोर्सेज को अपने मुल्क में महदूद करने की सोच में नहीं आए, आप फ्री ट्रेड की तरफ आए। फ्री ट्रेड का बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ये अच्छी चीज़ है। अब आप ये देखें कि जब से अमेरिका को 1980s के बाद या अब 2000s के बाद तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे जो है वो सामना करना पड़ रहा है एशियन कंट्रीज से। उनकी एक्सपोर्ट्स जितनी होती थी एशियन कंट्रीज को, वो उतना नहीं हो पा रही है, बल्कि एक रिवर्स ट्रेंड हो गया कि एशियन कंट्रीज से ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो वेस्ट को हो रही है। अब अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में आपको नज़र आता है कि प्रोटेक्शन की तरफ ज़्यादा जोर है कि नहीं भाई अमेरिका फर्स्ट, हम जो है वो अपने कंट्री को सबसे ऊपर रखें। यानी वो जो फिजियोक्रेट्स की सोच थी अब वो वापस आ रही है। तो उसका मतलब ये है कि अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज़ की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एलीट मुख्तलिफ फ़िलासफ़ीज़ का सहारा लेती है, ठीक है। तो उसमें फिर ये होता है कि कभी कोई इकोनॉमिक सिस्टम ज़्यादा अहमियत का इख्तियार कर जाता है, कभी कोई दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम अहमियत इख्तियार कर जाता है। तो वो फिर हमें ये देखना होता है कि प्रिंसिपल्स में अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हमारे लिए बेहतर है और कौन सी अप्रोच है जो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपकी अप्रोच ये है कि सेल्फ इंटरेस्ट ही सब कुछ है, तो उसमें ज़ाहिर है कि कैपिटलिज्म की बड़ी यानी आपको अपील मिलती है कैपिटलिज्म से कि भाई वो आपको प्रोटेक्शन देता है। वो ये कहता है कि कंज्यूमर भी सॉवरेन है, मगर किस हद तक सॉवरेन है? एक गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही तो वो किस हद तक सॉवरेन है अपनी इकोनॉमिक चॉइस में। इसी तरह से मार्क्सिज्म उनको अपील करता है जो एक्सप्लॉइटेड हैं या जो यानी जहाँ पे ये हो रहा है कि उनके पास रिसोर्सेज कम है, तो गरीब लोगों को तो ये चीज़ बड़ी अपील करेगी ना कि भाई ऐसा सिस्टम हो कि जिसमें अमीर गरीब सब बराबर, सबको एक जैसी वेज मिलेगी और हर एक से स्टेट जैसा चाहेगी काम लेगी, ठीक है। अब ये चीज़ गरीबों को ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अपील करेगी, मगर जो ज़्यादा टैलेंटेड लोग होंगे, ज़्यादा रिसोर्सफुल लोग होंगे, वो उसको लाइक नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप ये देखते हैं कि जब इंसेंटिव नहीं होगा कम्युनिज्म में या मार्क्सिज्म में कि अच्छा काम करके अच्छी सैलरी भी मिल सके, तो फिर सब कोई देखेगा कि भाई मैं अपने ह्यूमन कैपिटल को क्यों डेवलप करूँ, मैं मीडियोकर ही रहता हूँ, क्योंकि मैं मीडियोकर रहूँ या पुअर परफॉर्मेंस दूँ या मैं बहुत हाई परफॉर्मेंस दूँ, मुझे एक जैसा ही नतीजा मिल रहा है, तो मैं मीडियोकर ही रहता हूँ, मैं क्यों अपना ज़्यादा जो है एनर्जी वेस्ट करूँ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में। तो उस इकोनॉमिक सिस्टम की एक जगह अपील है, मगर उसकी लिमिटेशन भी है। इस्लामिक इकोनॉमिक्स का ज़्यादा फोकस ये है कि लोगों को एक्सेस टू फाइनेंस हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ रिड्यूस हो। इंस्टीट्यूशंस ऐसे अगर मौजूद है जो लोगों की एक्सप्लॉयटेशन का जरिया बनता है, तो उनको या तो ख़त्म किया जाए या उनका मुतबादिल तजवीज़ किया जाए और फोकस ह्यूमन डिग्निटी पे हो, सबसे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग की सस्टेनेबिलिटी पे हो, ह्यूमन बीइंग्स की ऑल इनकम्पासिंग नीड्स की फुलफिलमेंट पे हो, जिसमें उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स के अलावा इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल नीड्स भी शामिल है और ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स की फुलफिलमेंट को इन टोटलिटी ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए देखा जाए, ना सिर्फ ये कि चंद लोगों के लिए या एक कॉर्पोरेट एलीट या पॉलिटिकल एलीट के लिए। तो ये तीनों आपके पास इकोनॉमिक सिस्टम है। होता यह है कि जो रिसोर्सफुल लोग हैं, जो पॉलिटिकल माइंड आप कहें कि अथॉरिटी रखते हैं या इकोनॉमिक अथॉरिटी रखते हैं, कॉर्पोरेट एलीट के लोग हैं, वो अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए कभी मुख्तलिफ फिलासफीज़ को जो है वो यूज़ करते रहते हैं। कई दफ़ा इस्लामिक इकोनॉमिक्स को भी हो सकता है कि इसके लिए यूज़ किया जाए या उसको भी प्रमोशन मिले, मगर आपने ये देखना होता है एज अ स्टूडेंट कि भाई इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स कौन सा सिस्टम हमें ज़्यादा बेहतर नजर आता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत आई थॉरोली एंजॉयड योर लेक्चर्स और मुझे स्टूडेंट्स का भी साथ साथ फीडबैक मिल रहा है। एवरीवन एंजॉयड योर लेक्चर सो मच। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे इंटरेक्ट रहेगा ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। आई एम अगेन थैंकफुल टू यू। आपने हमें टाइम दिया, अपनी एनर्जी आपने इस पे लगाई और बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।